اے ہر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے ہر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله عليه وسلم. ایوان محترم، ارباب اعزاز، آج امام حسین علیہ السلام کی معرفت و شناخت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو تیسرے مرحلے میں شامل ہے. جن چھوٹی چھوٹی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں کی فہرست میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں آ جا. میں بغیر کسی تمہید کے جہاں سے میں نے سلسلے کلام کو آپ کے سامنے دوسرے بیان میں چھوڑا تھا، وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کی شخصیت میں تین طریقے کے اگر رخ پائے جاتے ہیں بنحو اکمل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی شخصیت سب سے بے نظیر ہے. سب سے پہلا رخ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کا اپنی ذات سے کیسا ربط ہے. دوسرا رخ یہ ہے، یہ دیکھا جائے اس انسان کا پروردگار سے اور اس کے معبود سے اس کا کیسا ربط ہے.
اور تیسرا رخ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس انسان کا اللہ کے بندوں سے کیسا رہا۔ دیکھیے تین ایسے رخ ہیں کہ اگر آپ تلاش کیجئے گا تو شاید کوئی کسی ایک رخ میں آپ کو کامل نظر آئے، لیکن دوسرے رخ میں اس کے یہاں وہ رخ اصلاً پایا ہی نہ جاتا ہو، یا اگر پایا جاتا ہو تو بہت معمولی حیثیت سے پایا جاتا ہو۔ یہ صرف آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جہاں یہ تینوں رخ آپ دیکھیے، ہر رخ کے اعتبار سے اگر کمالات پائے جاتے ہیں کسی شخصیت میں تو وہ صرف آل محمد کے ذوات مقدسہ ہیں جن میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ ان میں وہی وہ شخصیت کہ جن کے ہم اور آپ ذکر اور غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر آپ دیکھیے خود سرکار سید الشہداء کا اپنی ذات سے کیسا ربط ہے، خود ہی آیت بڑھ کے آواز دے رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا گہرا ربط ہے اپنی ذات سے کہ خود پروردگار اس رابطے کا اعلان کر رہا ہے۔ دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ آخر سرکار سید الشہداء کا اپنے معبود حقیقی سے کیسا ربط ہے، تو اسی آیت میں اس رابطے کو بھی پروردگار نے بیان کر دیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے کتنا گہرا ربط ہے سرکار سید الشہداء کا معبود حقیقی سے۔ اور اس کے بعد جو ربط دیکھنا ہے بندوں کا کہ سرکار سید الشہداء کا اللہ کے بندوں سے کتنا گہرا ربط ہے، آواز دی فادخلی فی عبادی۔ اگر بندوں سے گہرا ربط نہ ہوتا تو کیوں پروردگار کہتا کہ تم میرے بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ اب اگر ان تینوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، واقعاً اگر کوئی شخصیت کامل اور اکمل ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یاد رکھ لیجئے ہر انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم اور دوسرے ہے روح۔ اس میں کوئی انکار ہے ہی نہیں، جس کو بھی آپ پوچھئے وہ یہی کہے گا استاد انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح۔ دیکھیے روح تو کسی نے آج تک دیکھی ہی نہیں، ہے کوئی جو کہے کہ ہم نے دیکھی، دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اتنی بات تو ہم بھی جانتے ہیں یہ جسم ہے یہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، اور ہوتا ہی ہے، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہم آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اور بالخصوص جو آج کا دور چل رہا ہے کورونا کا، اس میں ہر دن خبریں ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح دار فانی سے پوچھ کر گئی، یہ دنیا سے چلے گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے، جسم کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تشییع جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سپردہ۔ یہ وہ جسم ہے کہ جسے ہم آپ ساتھ لیے رہتے ہیں، جس کو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، انسان کا ایک حصہ، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ جسم جسے ہم سب سمجھتے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دن فنا ہو جائے گا، بیٹے یا سپردے لاحق کریں گے یا محلے والے خاک کے اندر دفن کر دیں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا صاحب، جتنی احتیاط کرنا ہے جسم کے لیے، جسم ایسا ہو نہ پائے، بیمار نہ ہونے پائے، کمزور نہ ہونے پائے، جتنی بھی چیزیں جسم کی ہیں، جسم کی آرائش کے لیے، جسم کی خوبصورتی کے لیے، جسم کی زیبائی کے لیے، ہر انسان یہ چاہتا ہے ہمارے بال ایسے رہے، ہماری داڑھی ایسی رہے، ہمارا لباس ایسا رہے، ہر نقش و نگار اپنی پلک پلک انسان سوارے رہتا ہے، ایک بال نہ بڑا ہونے پائے، نہ ایک بال چھوٹا ہونے پائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم جسم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سب پتا ہے یہ رہنے والا نہیں ہے،
वाली है उसकी जिक्र ज्यादा करना। अब मैं आपके सामने उन कमालात को जिक्र करना चाहता हूँ जो जिस्म के कमालात, लेकिन जिस्म के कमालात आप जो भी समझ लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कहा जाए साहब बड़े खूबसूरत है लेकिन आप कुछ छोटी है, आप कहेंगे बड़े खूबसूरत है। एक आप बहुत ही हसीन और जमील, आप कहेंगे उनका एक हाथ छोटा है, आप कहेंगे। इसका मतलब है कि परवरदिगार का जो निज़ाम खिलकत है अगर उसके एतबार से मुकम्मल है तब कहा जाता है कि ये वाक़ियत सही है। अब वो रंग की बात में छोड़ दीजिए कि कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई पीले हैं, कोई नीले हैं, मुझे उसकी गुफ्तगू नहीं करना है। लेकिन जो जिस्मानी एतबार से अगर आप देखें वाक़ई जिस्मानी कमालात भी कुछ है। आप सोचेंगे यार कौन सी बात कहना चाहते हैं कि भला जिनमें कौन से कमालात पाए जाते हैं। याद रख लीजिए खुद हमारी फिक्र में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया। मैं बात आ गई है मसाइल की तो जिक्र करता चलूं। देखिए फरादा नमाज का सवाब आप जानते ही है, मैं क्या जिक्र करूं, लेकिन जिस चीज का सवाब जिक्र किया जाए ताकि लोग उसकी तरफ रग़बत करें वो है नमाज जमात। फरादा तो सभी पढ़ लेते हैं, अपने घर में पढ़ लीजिए, अपने इमामबाड़े में पढ़ लीजिए, लेकिन जमात का सवाब ही कुछ ज्यादा है। जितने हर ताकीद है जमात की, नमाज बा जमात अदा कीजिए, सही और कोशिश कीजिए। अच्छा इमाम जमात आप ले आए, यह बरकलिया लाने की जरूरत नहीं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव हर महल्ले में मौलाना पाए जाते हैं, इनमें दिन से आशना अफराद पाए जाते हैं। बरकलिया दो मौलाना, अब दोनों मौलाना है, इसी इमाम बारगाह में नमाज जमात बरकरार होना है, नमाज जमात होना है। अब दोनों मौलाना चाह रहे हैं मैं नमाज जमात पढ़ाऊं, वो ये चाह रहे हैं मैं नमाज जमात पढ़ाऊं। देखिए मतलब में रुकना चाहता हूँ तो बेचारे जो इमाम जमात के लिए आते हैं हमारे मोमिनीन किराम बड़ा मामूली समझते हैं। ठीक है ये बेचारों की जिम्मेदारी है, इनका काम ही यही है कि ये नमाज पढ़े, इनका काम ही ये है कि ये दीन। ऐसा लगता है दीन के यही ठेकेदार है बेचारे, इनको कुछ नहीं करना है, ये बस सिर्फ इनका नाम है कि ये शिया है, ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये फला खानदान के रहने वाले हैं। कितनी जिम्मेदारी है सब इनकी है। इनको नमाज के बारे में फिक्र करना है, इनको रोजे के बारे में फिक्र करना है, इनको तमाम मसाइल के बारे में फिक्र करना है। एक बात में महफूज रख लीजिए, जिसको आप इमाम जमात बना के ले आ रहे हैं अगर उसकी कदर न की, इसका मतलब है कि जहन में कोई दीन का असर नहीं पाया, दीन का कोई असर। अच्छा ये दोनों इमाम जमात अगर ये कहे मैं पढ़ाऊंगा, अगर ये शामिल हो जाए आना कि नहीं भाई मुझे पढ़ाना है, अगर ये हो जाए तो इसका मतलब कि अदालत साबित हुई कि नहीं। अगर ये हो जाए नहीं साहब हम इस मोहल्ले वाले हैं, ये हमारा इमाम बड़ा है, यहाँ हमने बात पढ़ाएंगे, इतने वर्षों से हमने यहाँ पढ़ाया, जहाँ ये सब शामिल हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अदालत साबित हो गई। तो जहाँ झगड़े हमारे यहाँ, अगर ये मैं झगड़े की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे माफ कीजिएगा, ये जो आपस में जो ये हो जाए हम पढ़ाए वो पढ़ाए, ये अगर आना शामिल हो जाए कि हमारा आदमी है, हमारी जगह है, हमारी मस्जिद है, हमारा इसका मतलब अदालत खत्म हो गई। नहीं यहाँ जो ये पढ़ते हैं किस बिना पर, सिर्फ सवाब के लिए, सिर्फ सवाब के लिए पढ़ना चाह रहे कि हम जमात पढ़ाएंगे तो हमें सवाब ज्यादा मिलेगा, हम इबादत करेंगे तो हमें सवाब। देखिए अगर ये फिक्र है तब तो सही है, तब तो इस्लाम में क्या देखा जाए कि इनमें कौन इल्म में बेहतर है, जो ज्यादा इल्म है उसे मुकद्दम किया जाए, ये देखा जाए कौन तक़वे में ज्यादा बेहतर है फिर उसको मुकद्दम किया जाए। और जब हर एतबार से हो तो देखा जाए मन कान अस्बहु वजहन, कौन वो है जो चेहरे के एतबार से हसीन और खूबसूरत है, उसको मुकद्दम किया जाए। अच्छा अब जो जाहिर की बात है जो जमात होती है, जब जमात होती है याद रख लीजिए तो जो नमाज आप पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं जमात से, इमाम की कितनी जिम्मेदारी है। वो बेचारा सूरह हमद पढ़े, इन्ना अतैना पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद, सब कुछ तो अब रकात को ये वो याद रखे, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। आपने क्या किया, नियत कर ली बड़े सुकून से, जैसे वो करते चले जा रहे हैं वैसे, सही है कि
मगर आज का दौर ये है भाई बच्चे को लोग भेजते ही नहीं मौलवी के पास पढ़ने के लिए। आज तो इंग्लिश मीडियम है बच्चा। हमारे पहले दौर में शुक्र था परवरदिगार का कि बच्चे को शुरू में ये कहा जाता था कि बिस्मिल्लाह कहो तो वो पढ़ता था, अल्लाह बताओ तो कहता था अल्लाह एक। आज का ज़माना ही बदल गया। आज कहते हैं माय गॉड कहते हैं, अजब अजब ये लफ्ज़ हैं जो बोले जाते हैं, जो बचपने में जाहिर सी बात है जो बच्चा खुद ही सूरह हम्द न पढ़े हो, जवानी गुजर जाए उसे सूरह का याद हो तो वो अपने बाप को फातिहा क्या देगा या नमाज़ें क्या पढ़ेगा। जमात रखी गई है, जमात में शिरकत किया करो, जमात का सवाब ज्यादा है और बड़ी आसान चीज है। तुम्हें करना क्या है, वो बेचारे पढ़ाते हैं, उनको रुकू करना है, उनको रकतों का ख्याल रखना है, इनको नमाज पढ़ाना है। परवरदिगार ने कहा खबरदार ये न सोचना इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तुम्हारी जिम्मेदारी कम है तो तुमको सवाब इनके बराबर दूंगा नहीं। अदालत परवरदिगार का तकादा नहीं है, जो मामूम है जो कौम है उसको उसकी जिम्मेदारी के एतबार से सवाब, जो इमाम है उसको उसकी जिम्मेदारी के एतबार से सवाब। अगर इतनी बात जहन में महफूज हो गई तो मैं जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। याद रख लीजिए जब कौम तलवार चलाती है तो उसको अलग सवाब मिलता है, जब हैदरा कर्रार तलवार चलाए जाहिर सी बात है वो कौम है, ये इमाम है। इसीलिए खंदक में आजादी ज़रबत अली यौम खंदक अफज़ल मिन इबादत अस्सलाह सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा ये न सोच लीजिएगा कि किसी को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बना लिया तो आपकी रिश्तेदारी है परवरदिगार से। ये मैं जरा सब के कह दूं, ये न सोचिए कि जिसका कद छोटा है वो शख्सियत के एतबार से भी छोटा है, या जिसका कद बहुत ही लंबा है वो सोचिए उसकी शख्सियत भी बड़ी तूलानी। नहीं, ऐसा कोई नहीं। कभी ये न सोचिएगा कि किसी ने परवरदिगार को नवाज दिया, दौलत दे दी, सरबत दे दी, सोचे अल्लाह के बड़ा लुत्फ़ करम है हमारे ऊपर, है बड़ा नजदीक हो गए हम परवरदिगार से। नहीं, ये ज़हन से खन्नास निकाल दीजिए। अगर दौलत और सरबत की वजह से उस बारगाह खुदाबंदी से तुम नजदीक हो सकते हो तो तुमसे सबसे पहला जो रिश्तेदार परवरदिगार का वो क़ारून फ़िरौन है। क्या किया परवरदिगार ने उन दोनों को? सजा आपके ज़हनों में है उन दोनों की। एक को दरियाए नील में डुबोया और एक को जमीन में धंसा दिया। भाई आप ये मत सोचिए ये तय है। हाँ, जिस्मानी कमालात बातिन होते हैं लेकिन वो रूह के कमालात की वजह से उस जिस्म पर उसका असर होता है। जिस्मानी कमालात की अपनी एक हैसियत है, एक अहमियत है। सरकार खत्मी मतलब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक तो मिलता है। देखिए 3 कमालात सरकार के जिस्मानी है। मैं जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहला कमाल क्या है जिसमें पैगंबर का कि साया नहीं होता। ये सुनी हुई बातें हैं, हम आपने बचपने से सुना। दरअसल है कि साया जिस्म ही का होता है, साया रूह का नहीं होता। जिस दिन साया रूह पे पड़ गया कोई नहीं दिखाई देगा। साया जिस्म ही का होता है? लेकिन कमाल है पैगंबर, कमाल है जिसमें पैगंबर ये है कि साया जिसमें पैगंबर का नहीं है, जबकि जिस्म जिस्म है, जिस्म रूह नहीं है। ये एक कमाल। दूसरा कमाल, कोई कतरीन दुर्रम खा बन जाए, मंसूर ज़मानतिया मालूम हो जाए लेकिन मक्खी बैठेगी तो नाजीब। लेकिन कमाल है जिसमें पैगंबर ही था कि जिसमें पैगंबर पर मक्खी नहीं बैठी। 2 कमाल मैं जल्दी जल्दी सुना दूं। तीसरा कमाल, सुई खो गई उम्मुल मोमिनीन की। और जैसे ही सरकार खत्मी मर्तबत आए फौरन सुई मिल गई। वहां पर चिराग नहीं जलाएगा। यह जिसमें पैगंबर का कमाल है। तो मेरे दोस्तों जिसमें पैगंबर के कमालात अगर देखें तो सब खुदा अगर लादे दही किसी अंधे कुएं में डाल दे पानी शीरी हो जाए, कोई जिसमें पैगंबर को देख ले तो सहाबी हो जाए, दस्ते पैगंबर किसी यतीम के सर पर पहुंच जाए तो एहसास यतीमी
मरतबत करें पैगंबर अकरम के जो कमालात हैं, जो जिस्मानी कमालात हैं, कोई एक हिस्सा सरकार खत्मी मरतबत का जिस्म का ऐसा नहीं है जिसमें कमालात न पाए। अब आइए तारीख में मैं सरकार सैयद शुहदा के हवाले से जो बात कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मुतअद्दिद रवायतें हैं, मुतअद्दिद किताबें हैं जहाँ सराहतन कहा गया अल हुसैन काना अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह। सरकार सैयद शुहदा के मुतालिक भी मिलता है कि सबसे ज्यादा लोगों में अगर कोई रसूल से मुशाबे थे तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा इसी से कर लीजिए। और वो बात जो मैंने पहले आपके सामने कही थी कि जब सरकार सैयद शुहदा की विलादत हुई तो जिसमें पैगंबर से आपके लिए ग़ज़ा फराहम की गई, इसका मतलब ये है कि जितने भी कमालात थे, चाहे वो जिस्मानी कमालात हो चाहे वो मानवी कमालात हो, सबके सब मुंतकिल हो रहे थे इस छोटे निवासे में। अब आप अंदाजा करो मेरे दोस्तों, सरकार सैयद शुहदा के जिस्मानी कमालात को जिस एतबार से देखा जाए, जो शबीह पैगंबर हो, जो हमशक्ल पैगंबर हो, जो गुफ्तगू में, जो रफ्तार में, जो गुफ्तार में, जो खल्क़ व खुल्क़ में, जो मंतिक़ में रसूल का मुशाबे हो, नहीं मैं लगता और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो हर एतबार से जिस्मानी एतबार से जो रसूल का मुशाबे हो वो हुसैन थे। और ऐसी मुशाबिहत थी, तन्हा जिस्मानी नहीं थी बल्कि रफ्तारी मुशाबिहत थी, गुफ्तार की भी मुशाबिहत थी। और ये रफ्तार ये मुशाबिहत याद रख लीजिए हर मासूम में पाई गई। यहाँ तक कि जब पांचवें इमाम को जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने देखा तो नहीं पहचान सके। एक मतलब कहा मौला कुछ कदम आगे बढ़ा दिए, इमाम आगे बढ़े, कहा पीछे हटिए, कहा पहचान लिया अंता मोहम्मद इब्न अली अल-बहक़ी। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी आपके आँख नहीं है, आपने कैसे पहचान लिया? कहा वो चलने के अंदाज को जो मैंने महसूस कर लिया ये वही है जो पैगंबर का है। अंदाजा करो मेरे दोस्तों। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो शबाहत सरकार सैयद शुहदा के बेटों में थी रसूल से, वो जनाब अली अकबर। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने किसी मजलिस में इस शबाहत को जिक्र करूंगा कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी इज़्तक़ना इला नबीना, जब मुझे शौक होता था अपने नाना की ज़ियारत का, नजर न इलैह, तो मैं नजर करता था अपने बेटे अली अकबर। यह शबाहत थी, यह जिस्मानी कमालात। दूसरा कमालात रूही और नफ्सी कमालात। इसी पर बात को मैं मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। रूह के अंदर भी बड़े कमालात पाए जाते, लेकिन शर्त यह है कि जब हम उन वसूल और ज़वाबित को तय करें। देखिए जिस्म भी कमालात कहा, अगर आप नज़ाफ़त का ख्याल न रखें, तहारत का ख्याल न रखें, इसके जो तकाज़े हैं जिस्म के अगर वो पूरे न कीजिए तो ये जिस्म क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है इसके कमालात खत्म हो जाएंगे। न आंखों में बीनाई रोशनाई रह जाएगी, न इस कान में सुनने की क़ुव्वत रह जाएगी समाज की, हर तरीके के कमालात खत्म होते चले जाएंगे। ऐसे ही रूह है। अब रूह के क्या कमालात हैं? देखिए 7 कमाल उलमाए अखलाक ने जिक्र किया। रूह का पहला कमाल क्या है? नफ्स का पहला कमाल है कुव्वत इरादा। हाँ, इरादा बड़ा कवी होना चाहिए। देखिए हर चीज तो पाई जाती है, एक इरादा ही कभी नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोगों को चाय नहीं मिलती है तो ऊँगने लगते हैं, नहीं समझ में आता कि बेचारे कैसे मुसलमान हैं, आया चाय ने इनको मुसलमान बनाया था। भला इस्लाम को भी कबूल करता हो और इतना भी कुव्वत इरादा उसके अंदर ना हो, होना तो यही चाहिए जब चाहे छोड़ दे। बहुत लोग कहते हैं मौलाना एक काफिर मुंह लग गई है। मैं किराए में बात कह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा काफिर नहीं मुंह लग गई है, आप खुद ही काफिर हो गए। वो काफिर थोड़ी मुंह लगी, वो तो आपके ऊपर है। जितना चाहे आप कीजिए, जब चाहिए छोड़ दीजिए। यहाँ के इरादा कभी, और इसीलिए याद रखिए जहाँ इरादा कमजोर हो जाए उन चीजों को परवरदिगार ने हराम करार दिया है या मकरूह करार दिया, या हराम या मकरूह करार दिया। आप बैठे हुए फाका रात भर के जगह हुए हैं, जाहिर सी बात शब आशूर
हुसैन में गज़ हुसैन में डूबा हुआ है, सुबह उठेगा तो कहा फाका दो, रोजा रखने के लिए नहीं कहा, इसलिए कि इरादा कभी हो। आज इस्लाम पर गौर करो मेरे दोस्तों, हमारे मज़हब ने हमें कितनी तरबियत दी है इरादे के कभी करने का, कि इरादा कभी करो। रोजा एक महीने का रोजा है क्या? लोग बड़े डरते हैं। रात माह मुबारक रमजान आया, कितने ऐसे सेहतमंद बीमार हो जाते हैं। अभी आया नहीं, अभी हम तो बचे हुए हैं, बहुत होशियार लोग हैं हमारी जो क्या नाम बरादरी के, बड़े होशियार हैं। माह मुबारक रमजान के एक हफ्ते आने से पहले कहते हैं मौलाना शुगर हो गई है और ऐसा हो गया। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे बेचारे, अल्लाह की बात को पता है, इतना होशियार है पहले ही से एहतमाम और इंतजाम के तरह। हालांकि ये परवरदिगार ने जो माह मुबारक रमजान में रोजा को रखा है, ये इरादे को कभी करने का जरिया है। आओ तुम इन बारगाह में पता तो चलो कि गुरबा कैसे रहते हैं, फकरा के कुछ तो एहसास करो। सिर्फ हमेशा मुर्गा मुसल्लम खा के और एसी में फराटे की जो नींदें लेते हो, कुछ तो आओ कि तुम्हारे अपने इरादे पर कुछ तो जोर डालो कि तुम्हारा इरादा भी मजबूत हो सके। बुलाया वहां हज पे, क्या कहा? आओगे तुम अपने घर, चाहे जिस दुकान का कपड़ा पहनते हो, जिस दर्जी का सिलाया पहनते हो, ये अलग बात है, कौन सा कपड़ा ले आते हो, लेकिन देखो यहाँ आना तो यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, यहाँ फैशन नहीं चलेंगे। हाँ, यहाँ सब है वही कपड़ा हो। ये क्या है? ये इरादे की तरबियत हो रही है, इरादे के कभी करने की तरबियत हो रही है। अच्छा, इरादा मजबूत होना चाहिए, याद रख लीजिए। और अगर आप देखिए इरादा अगर किसी का मजबूत ना हो, मैं आपको जब्बा गला के लिए कह दूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ना सोचिएगा अभी घर वाले हैं, खानदान वाले हैं, माँ बाप हैं, याद रख लीजिए अगर इरादा कमजोर है, लश्कर है, फौज है, असलाह है, तो कब तक चलेगा जब तक ये चीजें हैं। और हमने तो देखा है, हमारा तजर्बा है, तारीख में जिक्र किया है, जंगे खैबर में जाने वाले कितने लोग गए, 40 दिन तक गए, लेकिन जैसा उनका इरादा था सरदार का, वैसे ही लश्कर वालों का इरादा था। और इसीलिए कहते रहे, जब भागते थे तो कहते थे हम नहीं भागे, वो भागे, इतने होशियार थे, कहते थे घोड़ा लेके भागा। जहाँ इरादा कमजोर हो वहाँ कैफियत ये होती है, जहाँ इरादा कभी होता है। जाने वाला हजरत के साथ जब खैबर की तरफ जा रहा था, आबादी है अल्लाह के रसूल, बताइए कब तक क्यों करूं? कहा गया अभी जब तक खैबर को पता न कर लेना। तारीख में लिखा अली ने मुल्क नहीं देखा, लश्कर आ रहा है या नहीं। ऐसे होना चाहिए, याद रख लीजिए। मैं तो एक जुमला और मध्य मेरे कायनात में कहना चाहता हूँ, अगर इरादा कभी हो तो निहित्ते भी हों, अकेले भी हों, तब भी 40 जमी हुई नस्ली ताकतें टिक नहीं सकती। दावतुल अशीरा शब हिजरत का वाकया आपकी निगाहों के सामने, कितने लोग आए थे? 40 आदमी आए थे, सब बरहना तलवार। और ऐसे नहीं थे तो कोई उस कबीले का ऐसे ही मरीज लागर नहीं, हमारा जैसा कमजोर आदमी नहीं, बड़े हट्टे कट्टे लोग जो उस कबीले और खानदान के 40 जमी हुई नस्ली ताकतें। और सोने वाला सो रहा है तनो तनहा, न कोई असला है न कोई तलवार है। मेरा दिल चाहता है फरियाद करूं, ए अल्लाह के नबी, कम से कम कह दीजिए मेरे कायनात से कि कम से कम एक तलवार दाएं रहे, एक तलवार बाएं रहे। वो लोग देखे तो कुछ तो काफिर काले काफिरों के अंदर डर और खौफ समाए। कभी मुझसे न पूछो, पूछा परवरदिगार से। मैंने आवाज दी, मैंने रहीम व करीम परवरदिगार, ये जिब्राइल आए हैं, ये मीकाईल आए हैं, ये कसीदा पढ़ रहे हैं, इनसे कह दीजिए इनके हाथों में तलवारें चमके, ये देख के डर के चला जाए। कहा नहीं, तुमने अंदाजा नहीं किया, मैं इस अपने इस महत्व की ताकत का अंदाजा कराना चाहता हूँ, जिसके इरादे कभी इरादे के सामने 40 जमी हुई नस्ली ताकतें न टिक सके। उस हजरत के नाम के हाथ में जब आ जाएगी गुलफकार, उसमें हिम्मत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सके। तो इसे कहते हैं कभी इरादा। ये पहला कमाल है किसका? नफ्स का। दूसरा, जब इरादा कभी होता है तो जो दूसरी सिफत रूह
रूह के अंदर पैदा होती है, जो दूसरा कमाल पैदा होता है, उसका नाम है सब्र। तीसरा कमाल जब कवी इरादे के साथ और सब्र के साथ फिर तीसरी जो सिफत पैदा होती है जिसका नाम है शजाअत, और इन तीनों सिफतों के पाए जाने के बाद चौथा कमाल जो नफ्स के अंदर पाया जाता है वो है सलाबत राय, बहुत ठोस और मजबूत राय कि पहाड़ की चट्टानें भी उसका मुकाबला न कर सके। और जब ये चौथी सिफत उसके अंदर आ जाती है तो पांचवी सिफत पाई जाती है फराहत लहजा, 2-2-4 खड़ा खेल फरोखाबाद, बस 2-2-4 कहना है, न लिपटी न टिपटी, कुछ नहीं, कि ताकि बात एकदम वाज़ेह रहे, हम दो कह रहे हैं वो साथ साथ कह रहे हैं। और उसके बाद पांचवी के बाद जो छठा मरहला आता है कमाल का वो है इनकार बातिल, और सातवां कमाल जो उस रूह के अंदर पाया जाता है वो हक का ऐलान, बरमला ऐलान। ये वो कमालात है। मैं कुव्वत इरादी के सिलसिले में जो बातें और आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं मंजिल से नजदीक हो रहा हूँ। सरकार सैयद शुहदा के कुव्वत इरादी को अगर देखना है तो मैं जो बातें कह के और बात को और इस मंजिल को तमाम कर देना चाहता हूँ। देखिए, अमीर शाम को फिक्र हुई कि मेरे बाद ये हुकूमत कहीं और न जाने पाए। क्या किया? जाहिर सी बात है, अपने बेटे के लिए, मनहूस बेटे के लिए उसने नापाक साजिशों का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, दूसरे कुछ चमचे थे बदमाने बम्बई, वो उसके साथी हो गए। उसको डर था कूफे से, मक्के से और मदीने से। कूफे से मुगीरा ने अपने बेटे को भेजा कि लेके जाओ 2 आदमियों को और जाओ वहां कहो अमीर शाम के पास जाना और कहना कि अब आप चले जाएंगे, आपको एक न एक दिन जाना ही है। आप अपने बेटे के लिए ऐलान कर दीजिए और तुम लोग जाके उसके कमालात और उसके फदाइल बयान कर देना। देखिए, तारीख की यह हकीकत है। और जब आए, मुगीरा के बेटे ने कहा कि ये आए हुए हैं कूफे से। कहा किस लिए आए? अदालत के बाद उन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि हम आए हैं सरकार, आप अपने बेटे के लिए खिलाफत का ऐलान कर दीजिए, उसके हाकिम होने का ऐलान कर दीजिए। हम लोग आमादा है, तैयार हैं, हमारा पूरा कबीला, हमारा पूरा खानदान, आप सिर्फ ऐलान कीजिए, हम सब आमादा तैयार हैं। अच्छा, ऐसे में कोई और होता तो क्या कहता? ऐसे में कोई और होता तो कहता ठीक है, लोग बड़े अच्छे, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करवाया जाए। लेकिन तारीख में हकीकत है, माविया ने पूछा बेगम इश्तरा अबू का दीन होमा। मुगीरा के बेटे से मुखातब होकर कहा, ये बताओ तुम्हारे बाप ने इन दोनों का दीन कितने में खरीदा? अच्छा, बेटा भी जो है बड़ा बेबाक था, उसने कहा 30,000 30,000 में। अच्छा बता, ऐसी बात थी, अगर कुछ नहीं था तो किसी दूसरे आदमी में पूछा जा सकता था, इशारा कर देता, आज कुछ तुम्हारे बाप ने जेब में दिया है, बेचारे इतनी दूर से आए हैं, जेब खाली है, और नहीं दिया है तो हमारे जाओ कह देते हैं, ये मुंशी जी बैठे हैं, कुछ ना कुछ इसकी जेब में डाल देंगे। लेकिन ये कुदरत का इंतजाम है, ये परवरदिगार का इंतजाम है कि उस हकीकत को उस दुश्मन की ज़बान से निकलवा लिया कि जितने ये कहा, ये बताओ तुम्हारे बाप ने इनका दीन कितने में खरीदा। इसका मतलब है अमीर शाम ये समझता है कि यतीम की भला दीन का फायदा है। अल्लाह अकबर, दीन का सौदा, ये एक मरहला। अच्छा, बात तो कामयाब हो गए। आया मरहला कि अब तो फिक्र हुई कि ये 2 इलाके, असल जो बात कहना वो ये है। अब यहाँ आए, और जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात, इनको पता है 5 लोग हैं, तारीख में नाम है, इन 5 लोगों से बड़ा डर था। लेकिन जब आया है, आने के बाद उसने क्या किया, अंदाज ये था कि बड़ा लश्कर लेके आया अमीर शाम, और कहा जितने बड़े बड़े लोग हैं, यही नहीं, सबके पास 2-2 आदमी तलवार लेके खड़े रहो। और उसके बाद गया मिंबर पे, जो भी उसका मंसूबा, जो भी इसका इरादा था, जब अपने इरादे को जाहिर कर चुका, तो ये तो बेचारे करें तो क्या करें, इनके इरादे पहले ही से इतना कमजोर और ज़ईफ थे, अब तो और हिम्मत नहीं है।
भाई जब तलवारें नहीं थी सर पर तब तो दबा खोली नहीं, अब आज उठाए तो सर कैसे उठाए। मैंने जंगे खंदक में तारीख तबरी में लिखा है कि अमर बिन अब्दबत जब आया था तो जितने भी रसूल के सहाबी थे वो सब ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनके सरों पर परिंदा कोई जरा सा भी हिला, परिंदा उड़ गया। उससे ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए कि वहां तो परिंदा उड़ेगा, यहाँ सर उड़ जाएगा। ये इसलिए कि तो खड़े हुए, लेकिन मेरा करारा सलाम हो फातिमा ज़हरा के लाल पर। आबादी तू किसके सिलसिले में बातें करता? हमारे यजीद, उस यजीद के बारे में जो फासिक है, जो फाजिर है, लाइकुल गलत है, मंदिरों में खेलने वाला है। अल्लाह अकबर। ये रोबा जंगलात, ये रोबा दबदबा, ये जलाल, ये अंदाज़े तकल्लुम है किसी में, ये उसी में पाया जा सकता है जिसके अंदर शीरे फातिमा का असर हो। ये अमीरे कायनात का खून जिसके रगों में पाया जाता हो, उसी के अंदर ये इरादा, अभी बैत का इनकार नहीं है, वो मरहला बात है, वो मरहला बात है। आवाज की खबरदार, ये हाकिम नहीं हो सकता इस्लाम का हाकिम, इस्लामी हाकिम शराबी नहीं हो सकता, कबाबी नहीं हो सकता, बंदरों में खेलने वाला फासिक व फाजिर इंसान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं जुमला करके मंजिल से नजदीक हो गया हूँ। याद रख लीजिए, सरकार सैयद शुहदा ने अपनी इस कुव्वत इरादी ही के जरिए एक ऐसा खत खींच दिया कि शनाख्त हो गई कौन हकीकी इस्लाम वाले हैं और कौन उस इस्लाम वाले हैं जो हर अहले गैरों को मान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, बकिया बातें इस हवाले से बाद में आपके सामने जिक्र करूंगा। कसम ब खुदा, सरकार सैयद शुहदा के इरादे की कुव्वत को अगर कोई देखे, ऐसा कभी इरादा तारीख बशरियत में आए कोई देखे जहां बड़े बड़े लोगों के इरादे कमजोर पड़ जाते हो, हाथों की कुव्वत जवाब दे जाती हो, लेकिन कसम ब खुदा क्या कुव्वत इरादी थी सरकार सैयद शुहदा। और सब्र का क्या कहना, सब्र का क्या कहना, वो मंजिल जहां सब्र अय्यूब भी रुक गया, और शजाअत की तो वो मंजिल है। हाँ, जब जंग हो रही थी तो जाहिर सी बात है कम से कम कुछ लोग तो थे कि जो उनके होते हुए जाके शजाअत और बहादुरी और रज़्म और जिहाद कर रहे थे। लेकिन हुसैन की शजाअत देखो, जब कोई नहीं है तब भी तनो तन्हा अलग बहादुरी, वो शजाअत, वो हमले आज भी तारीख में सब्त हैं। और सराहते लहजा ऐसा है कि कह दिया कि ला युबाए मिस्ली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। और इनकार बैत, बातिल का इनकार तो इस अंदाज में किया कि फिर हुसैन के इनकार के बाद किसी बातिल में इतनी जुर्रत न हो सकी कि किसी हुसैनी से बैत का मुतालबा कर ले। ये वो कमालात है मेरे दोस्तों जो मेरे मौला मेरे आका में पाए जाते हैं। मैं लफ्जों को और आपसे नजदीक कर दूं, नहीं, सिर्फ सरकार सैयद शुहदा में नहीं बल्कि सरजमीन करबला पर आज मुहर्रम की 3री तारीख है। जितने भी हैं सबके अंदर बेअनी उसी तरीके से रूही कमालात, नफसानी कमालात पाए जाते हैं। चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे मर्द हों, चाहे औरतें हों। आज माह मुहर्रम की 3री तारीख है। मक्तल में मिलता है आज के दिन उमर साद लड़ी का अपने लश्कर को लेके सरजमीन करबला पर पहुंचा है। और तनहा पहुंचा नहीं है, अल्लामा शुस्त्री अलैहिर्रहमा फरमाते हैं घोड़ों को दौड़ाया है, घोड़े दौड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन अल्लाह रे इन हुसैन के बच्चों के अंदर कुव्वत इरादी कितनी कवी थी, इरादे की कुव्वत इतनी थी कि बच्चों के जिस्म में कोई लर्जा नहीं आया। आ गई फौजें, एक मरतबा आके कहने लगे यहाँ से खैमे को हटाओ। जैसे ही कहा यहाँ से खैमे को हटाओ, एक मरतबा जनाब कासिम ने बढ़ के चचा से कहा, ए चचा आप हट जाइए, मैं इस लश्कर को देख लूंगा। बढ़ के अली अकबर ने कहा, ए चचा आप हट जाइए, मैं इस लश्कर को देख लूंगा। लेकिन अब्बास को जलाल आ गया, आवाज दी खबरदार यहाँ से खैमे नहीं हटेंगे।
تاریخ مقتل نے لکھا، عباس علمدار نے خط کھینچ دیا، کہا اگر اس خط کے پار ہو جاؤ ذرا ہمت ہو تم میں، جیسے شیر کے جلال کو سرکار سید الشہداء نے دیکھا، میرے امام نے اپنے بھائی عباس کو کچھ نہ کہا، سیدھے خیمے کے اندر آئے، اے بہن زینب عباس کو جلال آ گیا، میرے شیر کی تیریوں پہ بل پڑ گئے ہیں، اے بہنا میرے شیر کو سنبھال لو، میں شیر کو کہاں روکوں، دربار ولید میں جب مروان نے گستاخی کی تب میں نے عباس کو روکا، راستے میں آتے ہوئے حر نے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا تب میں نے عباس کو روکا، اے بہن زینب عباس کو جلال آ گیا ہے، شیر کو جلال آ گیا ہے، کہا بھیا بات کیا ہے، کہا جلدی سے فضا کو بھیجو، عباس کو بلا لو، فضا گئی، اے آقا آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے عباس اگر آنے میں دیر ہو گئی تو زینب خود آ جائے گی، میں اتنا کہنا تھا، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر جھکائے ہوئے خیمے میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی غلام حاضر ہے، آپ پہ کیا امر ہے، کیا حکم ہے، آواز یہ ہے میرے شیر و دل عباس، اے میرے بھائی عباس، میرے ماجائے آپ اور مولا کا حکم یہ ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیا جائے، اللہ نے شجاعت عباسی، اللہ نے اطاعت امیر، اطاعت امام حسین، کس قدر امام حسین کے مطیع ہے عباس، میں مطلب سر کو جھکا لیا، جناب خیمہ کو کھولنا شروع کیا، آواز بیٹا اکبر، اے میرے لال قاسم، اے احمد احمد، آؤ خیمہ کو آگے لے کے چلو، اے میرے دوستو افراد خیمہ اٹھ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا پڑے گا، انتظام کرنا پڑے گا، بندشیں ایک عظیم مصیبت ہے کربلا کی، آواز یہی تو وہ آواز تھی کہ جسے حر نے سنا تو حر منقلب ہو گیا، ابھی آپ نے سود خالی میں جناب حر کا تذکرہ سنا، انہی کے مصاب پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ حر کچھ خیمہ حسینی سے قریب بھی اور اپنے کان کو لگائے ہوئے سن رہے تھے، آواز آ رہی تھی الاتش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، میں ایک مرتبہ حر تڑپ گئے، خیمے کی طرف اپنے خیمے کی طرف اڑا رہے تھے، حر کا جسم کانپ رہا تھا، کسی نے پوچھا، بھائی نے بڑھ کے پوچھا، اے حر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں مرتبہ حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، لے کے خیمے حسینی کی طرف قریب پہنچے، کہا ذرا سنو تو آواز، جیسے آواز سنی حر کے بھائی کا بھی دل منقلب ہو گیا، ایک مرتبہ کہا اے حر ارادہ کیا ہے، آواز دی اب جانے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ میری ہی وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں، اگر میں آقا کو یہاں گھیر کے نہ لایا ہوتا تو میرے آقا کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ ہاں میرے دوستو حر نے ایک اور کوشش کی، عمر سعد علیہ کے پاس حر پہنچے اور نے کہا اے عمر سعد میں نے سنا ہے کہ جنگ کا ارادہ ہے، کیا صلح کا کوئی راستہ نہیں ہے، عمر سعد علیہ نے کہا نہیں اب جنگ ہو کے رہے گی، بجائے سے حر وہاں سے چلے تو راضی یہ کہتا ہے جو حر کا ایک سپاہی کہتا ہے، میں نے دیکھا حر کا جسم کانپ رہا تھا، میں تو حر سے میں نے پوچھا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، حر نے کہا یہاں بہادری کا مسئلہ نہیں ہے، میں جنت و جہنم کے درمیان ہوں، اب میں کیا کروں، میں مطلب حر چلے جیسے ہی پہنچے یہ کہہ کے چلے کہ میں فرات پر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، میں اس طرف چلے، میں مطلب چلتے چلتے خانہ حسینی کا رخ کیا، بیٹے نے آواز دی ہے بابا کہاں کا ارادہ ہے، غلام نے آواز دی ہے آقا کہاں کا ارادہ ہے، آواز دی میں جا رہا ہوں اپنے مولا کی طرف جا رہا ہوں، فرزند زہرا کے پاس جا رہا ہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے جا رہا ہوں، جیسے ہی بیٹا آگے بڑھا، ہاں میرے لال آ گئے ہو تو یہ رومال لے لو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ان ہاتھوں نے بڑی خطا کی ہے، لے جاؤ حسینی تک یہ ہاتھ گئے، بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو رومال سے باندھا، یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کی طرف رواں دواں ہوا، نظر پڑی، آواز دی بھیا عباس اے بیٹا علی اکبر بڑھو استقبال کے لیے بڑھو، جملہ سنیے میرے دوستو، جیسے ہی بڑھے عباس علمدار علی اکبر بابا کیا نے اپنے کو گھوڑے
लिया, हाथों को, बंधे हुए हाथों को अब्बास आलम दानी अकबर के सामने कर लिया कि मुझे मेरा रास्ता तक पहुंचा दो। लेके आए बमख के हुन ने अपने को मौला के कदमों में गिरा दिया। मुताब में बढ़ के ये क्या कर रहे आका, बड़ी गलती हो गई, बड़ा जुर्म किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या अच्छा नाम रखा, तुम दुनिया में भी आजाद हो, तुम आखिरत में भी आजाद हो। पर मतवा उनने हाथों को जोड़ा था, तब मैं समझूंगा मेरी तौबा कबूल हो गई, मुझे मरने की रजा दे दीजिए। दो जुमले मंजिल तमाम है मेरे दोस्तों। आवाज दिए हो, अभी तो आए हो, अभी मेहमान हो, कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। एक कतरे आग नहीं है जितने से रात किया जा सके। हाँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौला इस मेरी वजह से है। हाँ, अगर जाने ही चाहते हो तो ये तो कुर्बानी का दिन है। मैं इस मर्तबा उनके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। अपने बेटे को कहा, हे मेरा लाला मादा हो जा। उनका बेटा चला मैदान कारबार में पहुंचा, रजल बढ़ी, जंग की, जंग करते करते अपना लाल का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। मैं मरता फिर उठे, अपनी कमर को पट्टे से कसा, मर्तन की तरफ जाने लगे। जैसे ये बाप को पता चला, डर के बाप को उनको रोक लिया। अरे तुम मर्तन में न जाओ, जवान का बकरा है, तुम बाप हो, जवान बेटा है, तुमसे देखा न जाएगा। मौला, अरे उनको तो रोक लिया, लेकिन हाँ उस वक्त क्या कीजिएगा जब अकबर आवाज وتسليما لأمر المولى لا عباد غير عبده وصالح وبني وبحق الأئمة من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام. اے میرے رحیم کریم پروردگار، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. مارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا، مہمان اہل بیت عطادارہ میں سے شہداء، دنیا کی روشی ان کی جان مال عزت و ان کی حفاظت. میرے رحیم کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے آپ نے سرکار سید الشہداء کا ہم سب کو ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے رحیم و کریم پروردگار، ہمارے آقا